Hi, this is Sushil from Creative Mind International School. Today I am going to discuss about how can we delete rows and columns. Today I will discuss the following topics. So first one already I have discussed in the last class, in the last video. So this first and second already I have discussed. Now today I will discuss deleting row and column. After that whatever, let's see how much I can complete today. So the first topic today is deleting a row. So then deleting a column, then splitting of a cell, merging of a cell, changing the column width, changing the row height. So these topics today I will try to cover. Now the first one is deleting a row. Now I will show everything practically. Now open the MS Word. MS Word open kiye. Now see here in the MS Word one table we will create first. So we have created one table. Now the table size is number of column is 4, number of row is, suppose number of row is 4. Now here the first one is name column, second one is father name, next one is date, admission number, and next one is roll number. Now here name is suppose Astha, next one is Sneha, next one is suppose Saurav. So these are the students. Now roll number is suppose 33, 22, 11. Admission number is 111, 222 and 333. Father's name is suppose Astha is Vikram. Next Sneha Sahil and Saurav Sachin. So these are the name of their fathers. Now so this is one table. ये टेबल है, टेबल मूव हैंडलर, इसको बोलते हैं टेबल मूव हैंडलर. ठीक है ना, ये जो एरो दिख रहा है. अब हमको क्या करना है, नाउ माय टॉपिक इज टू डिलीट अ रो. सपोज आई वांट टू डिलीट अ रो. दिस ये जो स्नेहा, ये जो सौरभ वाला रो है उसको डिलीट करना है. तो मैं क्या करूँगा, इस रो को सेलेक्ट करूँगा. सेलेक्ट किया, इस रो को सेलेक्ट किया, रो सेलेक्ट हो गया. अब मैं क्या करूंगा, डिजाइन, ये जो लेआउट टैब है ना, लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे. लेआउट टैब पे जाके क्लिक करेंगे. लेआउट टैब पे क्लिक किए तो हमें क्या करना है, लेआउट टैब पे क्लिक करने के बाद मेरे पास हम लोग रो एंड कॉलम ग्रुप में जाएंगे. रो एंड कॉलम ग्रुप में जाएंगे. रो एंड कॉलम ग्रुप में जाकर डिलीट ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, डिलीट ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करेंगे. और सी हियर द lot of options are there: delete cells, delete columns, delete row, delete table. Now I want to delete the row, so click on this delete row. Now see the row is deleted. Now I want to delete a row, so this one is one of the way to delete a row, one of the way for deleting a row, this one. Now another way for deleting a row is, suppose this Control Z, so this is the table. Now another way of deleting the row is, suppose I want to delete the row Sneha. इस रो को मैं डिलीट करना चाहता हूँ. तो क्या करूँगा, फर्स्ट सेलेक्ट द रो को मैंने सेलेक्ट कर दिया. उसके बाद मैं क्या किया, राइट क्लिक किया. राइट क्लिक करने के बाद सी हियर डिलीट रो इज ऑप्शन, डिलीट रोज इज द ऑप्शन. नाउ अब रो डिलीट हो गया. कैसे, सेलेक्ट द रो. इस रो को अगर डिलीट करना है तो रो सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और delete row is the option. In the context menu, this is what context menu. In the context menu we have to select the delete row option, so the row is deleted. So these are the two options using which we can delete a row, we can delete the row. Now our next topic is how can we split our cells. Now next topic is deleting a columns. Next topic is how can we delete the columns. Deleting a column. How can we delete a column? I want to delete the column. So this one is the table. I want to delete the column. This father name column को मैं delete करना चाहता हूँ. First select the column. Select किया इस column को. After that go to layout tab. Layout tab में जाएंगे. And then in the layout tab, after clicking on the layout tab, go to row and columns group. ये क्या है, rows and columns group है. इस ग्रुप में जाएंगे. ग्रुप में जाने के बाद डिलीट, ये जो ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक करेंगे. डिलीट ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है डिलीट सेल्स, इस पे क्लिक करेंगे. नाउ योर
column is deleted. So this one is the first way of deleting a column. Column delete करने का ये first way है. In this way we can delete the column. Now another way is also there to delete a table. तो मैं इसको Control Z कर रहा हूँ, वापस टेबल में जो कॉलम था वो आ गया. Now I want to delete the column. Another way, दूसरा तरीका जिसके थ्रू हम लोग टेबल में कॉलम को डिलीट करते हैं. सपोज आई वांट टू डिलीट द रोल नंबर, तो सेलेक्ट किया रोल नंबर को. नाउ राइट क्लिक ऑन द सेलेक्टेड सेल्स. हियर सी डिलीट कॉलम ऑप्शन इज देयर इन द कॉन्टेक्स्ट मेनू. जैसे ही राइट क्लिक किए कॉन्टेक्स्ट मेनू में मेरे पास ऑप्शन क्या है, डिलीट कॉलम्स. सो क्लिक ऑन डिलीट कॉलम्स. सी हियर योर कॉलम्स इज डिलीटेड. सो वी हैव टू ऑप्शंस फॉर डिलीटिंग अ कॉलम्स. फॉर डिलीटिंग अ कॉलम्स we have two options. Both the options I have shown to you. So next topic is splitting of cells. Next topic is so these two topics I have covered. Deleting a row is over. Now next one is deleting a column is also over. Now our next topic is splitting a cell. Just so now the next topic is splitting of a cell. Splitting of a cell. So this one is the next topic. So splitting of a cell means what? We can say converting. Splitting of a cell means converting a cell into table. Converting a cell into table. Cell को टेबल में कन्वर्ट करना ही होता है splitting of a cell. और another way में बोल सकते हैं इसको, splitting of a cell is nothing but dividing a cell. So this one is the simple definition. What is the simple meaning? Split means what? टुकड़ा करना, तोड़ना. More than one cells में. So one cell is there. Now suppose this one is one cell. I want to split this cell. So that means what? More than one cell में इसमें convert करना. इसी को splitting of cell बोलते हैं. Splitting means, और इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि converting a cell into table. सेल को टेबल में कन्वर्ट करना, ये क्या हुआ? स्प्लिटिंग ऑफ ए सेल. और इसको हम लोग अनदर डेफिनेशन, अनदर तरीका से हम समझे तो वी कैन से इट इज ए स्प्लिटिंग मींस, व्हाट इज स्प्लिटिंग मींस डिवाइडिंग अ सेल इनटू एक सेल को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल सेल में. डिवाइडिंग अ सेल इनटू मल्टीपल cells. So either we can define splitting of cell मतलब हुआ कि एक सेल को कन्वर्ट करना टेबल में ही splitting of cell होता है. और we can also say that dividing a cell, another way में बोल सकते हैं dividing a cell into multiple cells. एक सेल को more than one cell में कन्वर्ट करना को या डिवाइड करना को ही बोलते हैं splitting of a cell. Splitting of a cell means dividing a cell into multiple cells or converting a cell into table is also called as the splitting of a cell. So practically we will I will show. Practically I am going to show this. So this one is one table. Now I want to split this cells. I want to split this cell. This cell I want to split. I want to split this cell into different. I want to split this cell. So how we can split this cell? So for that first I have to go to the, see here, this one is the table. Now I want to split this cell. ये जो सेल जिसमें डेटा 22 है इसको मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ. सो वी हैव द फर्स्ट वे ऑफ स्प्लिटिंग द सेल इज फर्स्ट गो टू लेआउट टैब. लेआउट टैब में गए और लेआउट टैब में जाने के बाद मेरे पास ऑप्शन है, लेआउट टैब में जाने के बाद मर्ज ग्रुप है. मर्ज ग्रुप में जाएंगे, मर्ज ग्रुप में स्प्लिट सेल ऑप्शन है. स्प्लिट सेल ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे. स्प्लिट सेल ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे. अब जैसे ही स्प्लिट सेल्स ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो स्प्लिट सेल्स डायलॉग बॉक्स आएगा. इसको क्या बोलते हैं? See here, what is the name of this? This one is a dialog box. So this one is the dialog box. In the dialog box, see here, what is the name? Split cells. तो हम लोग split cells dialog box में number of column and number of row specify करेंगे. मतलब इस सेल को हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी क्या बताए थे? Splitting of a cell is nothing but converting a cell into table. Now see here, what is this? Number of column and number of row we have to specify. Means what? We are going to create one table. Inside a cell we are converting the cell into table. So for that, in order to make this cell into a table, we have to specify the number of columns and number of rows. So I want to convert this cell
into a table whose, in which the number of columns is 3 and the number of row is suppose 3 or whatever you want, number of row is 4, so that you have to specify here. मैंने नंबर ऑफ कॉलम स्पेसिफाई कर दिया, नंबर ऑफ रो स्पेसिफाई कर दिया. अब सी हियर, यहाँ पे क्लिक किया, ओके. नाउ सी हियर व्हाट हैपेंड, दिस सेल जो मेरा ये सेल था टोटल, उस सेल को मैंने कन्वर्ट कर दिया क्या चीज में, 3 रोज, 1 2 3 4 रोज एंड 3 कॉलम में कन्वर्ट कर दिया. तो ये क्या हुआ, पहले ये जो सेल्स था ये एक ही सेल था, अब ये सेल कन्वर्ट हो गया एक टेबल में बोल सकते हैं. ये क्या हुआ, टेबल ही तो हो गया. एक रो हुआ, सेकंड रो हुआ, थर्ड रो हुआ, फोर्थ रो हुआ, एंड दिस वन इज द फर्स्ट कॉलम, दिस वन इज द सेकंड कॉलम, दिस वन इज द थर्ड कॉलम. सो वी आर indirectly we can say that table is, we are converting a cell into a table, we are converting a cell into table. और हम लोग बोल सकते हैं कि we are converting this cell into multiple cells. हम लोग एक सेल्स को मल्टीपल सेल्स में कन्वर्ट कर दिए. सो टेबल मीन्स व्हाट, रो एंड कॉलम. रो एंड कॉलम क्या होगा, रो एंड कॉलम को अगर हम देखें तो सेल्स ही तो हुआ, मल्टीपल सेल्स हो गया. दिस इज वन सेल्स, सो 1 2 3 4 and 1 2 3, so 4 into 3, that is what 12 cells are. This cells is, one cell is converted into 12 cells. So this is all about splitting of a cell. Now our next point, now the next point is I want to convert this, I want to split a cell. So this one is the first way I have shown you. First go to layout tab, then in the merge group click, go to split cells, and here enter the number of column and row, then press OK. So we will convert a cell into what? We will convert the cell into table, or that is known as splitting of a cell. So there is another way of splitting of a cell. We can split a cell in another way also. Now I am going to discuss the another way of splitting a cell. Now suppose I want to split this cell. So select this cell. Now right click here, see here. So split cell ऑप्शन इज देयर. स्प्लिट कॉन्टेक्स्ट मेनू में क्या हुआ, स्प्लिट सेल ऑप्शन है, इस पे क्लिक किए. नाउ सी क्या आया, स्प्लिट सेल्स डायलॉग बॉक्स आ गया. सेम स्प्लिट सेल्स डायलॉग बॉक्स आ गया, और यहाँ पे स्पेसिफाई किए नंबर ऑफ कॉलम इज 3 एंड नंबर ऑफ रोज आई वांट 5. नाउ क्लिक ऑन ओके. व्हाट हैपेंड, this cell is converted into a table. This cell is converted into a table. This cell is converted into a table. So this is what, splitting of a cell. This is what, splitting of a cell. So this one is splitting of a cell. So that's all about the splitting of the cells. Now, so I have covered this fourth modification in the table, that is splitting of the cell. Now our next topic is merging of cells. Merging of cells. Now next one is merging of cells. So merging of cells means what? Merging of cells. Merging of cells means what? Combining or joining, whatever you want. Joining of multiple cells into a single cell. Joining of multiple cells into a single cell is called as merging of cells. मोर देन वन सेल्स को, अगर हम मोर देन वन सेल्स को मतलब मल्टीपल सेल्स को अगर हम कंबाइन कर दे वन सेल में, तो उसको ही बोलते हैं मर्जिंग ऑफ सेल्स. उसको बोलते हैं मर्जिंग ऑफ सेल्स. अब प्रैक्टिकली इसको हम लोग देखेंगे. ठीक है, of the cell. Now the practical of merging of the cells. Suppose I want to merge these cells. I want to merge these cells, these two cells into one single cells I want to merge. So I have to select these cells. First I have selected these two cells. ये दोनों सेल्स को मैंने सेलेक्ट कर दिया. नाउ आई वांट टू मर्ज दीज टू सेल्स इनटू अ सिंगल सेल्स. तो मैं क्या करूंगा, लेआउट टैब में गया, यहाँ पे ये ऐसे है. अब इसमें लेआउट टैब में मैं गया. लेआउट टैब में जाने के बाद क्या किया, मर्ज ग्रुप में गया. मर्ज ग्रुप में गया. मर्ज ग्रुप में जाने के बाद क्या हुआ, मर्ज सेल ऑप्शन है मेरे पास, पे क्लिक किया. नाउ सी व्हाट हैपेंड, दीज टू सेल्स नेम एंड फर्स्ट नेम जो है इसका, जिसमें फर्स्ट जो सेल था जिसमें की वैल्यू 8 था और जी था, ये दोनों मर्ज हो गए. ये दोनों मर्ज हो गए इनटू वन सिंगल कॉलम, इन वन सिंगल सेल्स. एक सिंगल सेल्स में ये मर्ज हो गया. अब इसको हम लोग सेपरेट करना चाहते हैं तो सेपरेट भी कर सकते हैं. ये अलाइनमेंट हो गया. ठीक है ना. इन द सेम वे आई वांट टू मर्ज दिस स्नेहा आल्सो. सो सेलेक्ट दिस. इसको भी सेलेक्ट किए. लेआउट टैब में गए, यहाँ पर मर्ज ग्रुप में गए, मर्ज सेल्स पे क्लिक किए. तो इस तरह से ये क्या हुआ, मर्ज हो गया.
तरह से ये दोनों मर्ज हो गए। नाउ सो मर्जिंग मीन्स व्हाट, मल्टीपल सेल्स को ज्वाइन किए, वन सेल हो गया ये। ओके, नाउ दिस वन इज द वन वे ऑफ मर्जिंग ऑफ अ सेल। सो वी हैव अनदर वे इज आल्सो देयर टू मर्ज अ सेल। सो फर्स्ट सेलेक्ट, आई वांट टू मर्ज दीज 4 सेल्स, ये दोनों, ये चारों सेल्स को मैं एक सेल्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मर्ज करना चाहता हूँ। सो सेकेंड वे ऑफ मर्जिंग अ सेल इज जस्ट सेलेक्ट द सेल्स, राइट क्लिक, सेलेक्ट सेल्स को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, सी हियर द मर्ज सेल्स इज द ऑप्शन in the context menu. In the context menu we have, this is what, one context menu. In the context menu we have a option merge cells, so click on the merge cells option. Now see here, the all the 4 cells are merged into one single cells, ये एक सिंगल सेल्स में मर्ज हो गया, ठीक है। और यहाँ से डेटा को हम लोग एज पर आवर रिक्वायरमेंट क्या किए, अलाइनमेंट अप्लाई कर दिए, जहाँ पर रखना है वहाँ पर रख लिए। सो दिस इज मर्जिंग ऑफ अ सेल्स, मर्जिंग ऑफ अ सेल्स। सो मर्जिंग ऑफ द सेल्स we have done. That's all about merging of the cells. So our next topic, so see here, merging of the cells is over. Now the next topic is changing the column width and column row height. So our next topic is changing the column width and row height. Now our next topic is this, changing the column and column width. So this topic, sixth point is changing the column width. I want to change the column width. So practically हम इसको दिखा रहे हैं आप लोग को। Suppose this one is the column. Now select this column, और या तो कॉलम को सेलेक्ट किया या इस कॉलम के किसी भी सेल में जाके माउस पॉइंटर को रख दिए यहाँ पे ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग, ये हमारा टेबल है, ठीक है ना, ये टेबल है, और इस टेबल में हमारा ये जो कॉलम है फादर नेम, उसके हम लोग इस कॉलम जो है हमारा क्या है, ये कॉलम फादर नेम। अब इस कॉलम के हम लोग विड्थ को, इस कॉलम के विड्थ को हम लोग बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, इस कॉलम को या तो सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे, या इस कॉलम में किसी सेल्स पे जाके माउस पॉइंटर को क्लिक कर दिया, ठीक है। तो मैंने इस कॉलम को सेलेक्ट कर दिया, फिर लेआउट टैब में गए, और लेआउट टैब में मेरे पास क्या है, प्रॉपर्टीज ऑप्शन है, प्रॉपर्टीज टेबल ग्रुप है, ये टेबल ग्रुप है। लेआउट टैब में गए, इस कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद लेआउट टैब पे क्लिक किया, उसके बाद टेबल ग्रुप है, ये क्या है, टेबल ग्रुप। टेबल ग्रुप में जाके प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे क्लिक किए, प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे क्लिक किया, एंड नाउ सी हियर इज द कॉलम टैब, कॉलम टैब है। अब इस कॉलम टैब पे ये क्या होता है, डिफॉल्ट जो होता है, सी हियर ये टेबल टैब है, रो टैब है, कॉलम टैब है, सेल्स टैब है, ऑल्ट टैक्स है। तो मुझे कॉलम का विड्थ बढ़ाना है या घटाना है, तो कॉलम पे क्लिक किए, और फिर जाके ये जो चेकबॉक्स इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चेकबॉक्स। तो चेकबॉक्स को टिक मार्क कर देंगे, मतलब चेकबॉक्स को ऑन कर देंगे, सेलेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे देखिए ये जो विड्थ हमारे पास कॉलम है, उसका विड्थ 4.0 सेंटीमीटर है, और मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, सपोज मैंने 8 सेंटीमीटर कर दिया, और जाके अप्लाई कर दिया, ओके। ना सी हियर कॉलम का विड्थ मेरा बढ़ गया ना। अब मुझे कॉलम का विड्थ घटाना है, कम करना है, तो सेम हियर लेआउट में जाएंगे, पहले हम क्या करेंगे, सी हियर सेलेक्ट कर लेंगे, अब हटा दिए, कॉलम विड्थ घटाना है, सेलेक्ट किए, लेआउट टैब में गए, टेबल ग्रुप में गए, प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे गए, कॉलम सेलेक्टेड है, यहाँ से मुझे घटा दिया, सपोज आई वांट 4 सेंटीमीटर, ओके। नाउ सी हियर द कॉलम विड्थ डिक्रीज्ड, ओके। नाउ अनदर वे इज आल्सो देयर फॉर डिक्रीजिंग द कॉलम विड्थ, अनदर वे इज आल्सो देयर। फर्स्ट आई विल डिस्कस द रो को डिस्कस कर लेना, फिर अनदर वे डिस्कस करेंगे, और फर्स्ट जस्ट वेट, अनदर वे फॉर डिक्रीजिंग द increasing, or another ways for increasing or decreasing the width of the column. How can we increase or decrease the width of the column? The second way of doing this, first way I have already shown, now second way, suppose I want to decrease this column width, ये कॉलम का width में डिक्रीज करना, तो कॉलम को के किसी भी सेल को सेलेक्ट किया या पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लिए, राइट क्लिक किए, यहाँ पे राइट क्लिक किए, नाउ सी हियर ऑप्शन इज देयर, टेबल प्रॉपर्टीज वन ऑप्शन इज देयर इन द कॉन्टेक्स्ट मेनू। कॉन्टेक्स्ट मेनू में मेरे पास ऑप्शन है टेबल प्रॉपर्टीज, इस पे क्लिक किया, नाउ सी हियर कॉलम विड्थ आई वांट टू डिक्रीज, सो हियर आई एम स्पेसिफाइंग 3.3 सेंटीमीटर सपोज, ना ओके। नाउ सी हियर द विड्थ ऑफ द कॉलम इज डिक्रीज्ड और नॉट। नाउ आई वांट टू डिक्रीज द विड्थ ऑफ द रोल नंबर कॉलम। ना इस कॉलम के किसी भी सेल में मैं गया,
माउस पॉइंटर यहाँ पे रख दिया और राइट क्लिक किया, यहाँ पे सी या टेबल प्रॉपर्टीज समवेयर ऑप्शन इज देयर, टेबल प्रॉपर्टीज इन द कॉन्टेक्स्ट में क्लिक किया, कॉलम है ये, इसमें मैंने स्पेसिफाई कर दिया व्हाट 2 सेंटीमीटर। ओके, ना सी सेलेक्ट किया, नहीं हुआ तो क्या करेंगे, सेलेक्ट किए, राइट क्लिक किए, टेबल प्रॉपर्टीज इज देयर, सी यार यहाँ पे ये क्या हुआ था, ये प्रीफर्ड विड्थ पे चेक नहीं किए थे तो इसको सेलेक्ट किए और इसको मैंने क्या किया 3 सेंटीमीटर कर दिया, 3 सेंटीमीटर किया, ओके अप्लाई किया, नाउ सी हियर कम हुआ ना। सो और भी कम करना है तो यहाँ पे माउस पॉइंटर गए, राइट क्लिक किए, टेबल प्रॉपर्टीज ऑप्शन है, इस पर क्लिक किए, प्रीफर्ड विड्थ सेलेक्टेड है और यहाँ पे मैंने इसको डिक्रीज करके 1.9 कर दिया, 1.9 कर दिया सेंटीमीटर। हाँ अप्लाइड, जस्ट वेट, नहीं हुआ, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किए, टेबल प्रॉपर्टीज में गए, प्रीफर्ड विड्थ को सेलेक्ट किया, नाउ हियर सपोज 1.9 सेंटीमीटर, 1.9 सेंटीमीटर। अब मैं जाके ओके किया तो ये अभी भी नहीं हुआ, जस्ट वेट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करेंगे, टेबल प्रॉपर्टीज पे गए और प्रीफर्ड विड्थ पे सेलेक्ट किए और हम इंक्रीज करके देख रहे हैं, सपोज 10 सेंटीमीटर कर दिया, ओके हुआ ना। डिक्रीज करना है तो ऐसे ही सेलेक्ट किए, टेबल प्रॉपर्टीज पे गए, प्रीफर्ड विड्थ सपोज 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर ना, 2 सेंटीमीटर हुआ ना। ऐसे ही अगर इसको मैंने सेलेक्ट किया, माउस पॉइंटर यहाँ पे राइट क्लिक किया, टेबल प्रॉपर्टीज पे क्लिक किए और मैं अभी इंक्रीज कर रहा हूँ, सपोज 8 सेंटीमीटर किया, सी या हो रहा है ना। अब मुझे अगर डिक्रीज करना है तो माउस पॉइंटर पे राइट क्लिक किए, टेबल प्रॉपर्टीज में गए और प्रीफर्ड विड्थ सेलेक्ट किए और मुझे क्या करना है, डिक्रीज करना है, या द हाइट मुझे डिक्रीज करना है, सपोज आई वांट टू मेक इट 4 सेंटीमीटर ना, सी या वर्किंग। सो इन दिस वे वी कैन either increase or decrease the width of the column. Now our next topic is I want to increase the height of the row. रो है ये और इसके हाइट को इंक्रीज करना है, इस रो के हाइट को। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दिस वन आई हैव कवर्ड। नाउ द लास्ट पेंडिंग टॉपिक इज चेंजिंग द हाइट ऑफ द रो। रो के हाइट को हमको चेंज करना है, ठीक है। सो सपोज दिस वन इज द रो, आस्था इज वन रो, so in this for this row I want to change the height change करना है, ठीक है। so how can we change this, so select this, इसको सेलेक्ट किया, लेआउट टैब में गया और उसके बाद टेबल ग्रुप में गया, प्रॉपर्टीज में गया एंड सी हियर द रो, क्लिक ऑन द रो टैब में गया, स्पेसिफाई हाइट को मैंने स्पेसिफाई कर दिया, सपोज 5 सेंटीमीटर, ओके। नाउ सी द टेबल रो हाइट इज इंक्रीज, रो का हाइट इंक्रीज हो गया। नाउ आई वांट टू इंक्रीज, सो दिस वन इज द वन वे ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द रो हाइट। इंक्रीज किया, अभी मैं इंक्रीज कर दिया। नाउ आई वांट टू चेंज द हाइट ऑफ द कॉलम रो, आई वांट टू चेंज द हाइट ऑफ द रो। सो अनदर वे इज देयर, सपोज आई वांट टू चेंज द हाइट ऑफ सौरभ रो, तो इस रो में गया, इस रो को सेलेक्ट कर दिया, या इस सेल को ही सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किए, हमारे पास टेबल प्रॉपर्टीज ऑप्शन है, इस पे क्लिक किए, रो आया, स्पेसिफाई हाइट पे गए और यहाँ पे मैंने सपोज 7 सेंटीमीटर कर दिया और ओके अप्लाई कर दिया। नाउ सी द हाइट इज इंक्रीज। नाउ आई वांट टू चेंज द हाइट, अभी इंक्रीज किया हूँ, डिक्रीज करना चाहता हूँ, राइट क्लिक किया, टेबल प्रॉपर्टीज में गया, हाइट हमारे पास रो सेलेक्टेड टैब पे, मैंने रो टैब पे ऑलरेडी ये है और इसको मैंने 3 सेंटीमीटर कर दिया हाइट। नाउ सी हाइट 3 सेंटीमीटर हो गया। सो इस तरह से रो के हम लोग हाइट को मैनेज कर सकते हैं। सो आई हैव डिस्कस 2 ways. Another way is also there for changing the height and width of the column. हाइट और width of the column अगर चेंज करना है या रो के हाइट को चेंज करना है या कॉलम के विड्थ को चेंज करना है, so we have another third way is there for both. So what is that third way? I want to change the column width. कॉलम के विड्थ को चेंज करना चाहता हूँ। सपोज यहाँ पे फादर्स नेम वाले जो कॉलम है उसके विड्थ को चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ पे ऐसे ले गया, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, डबल हेडेड, ये जो है ना हमारे पास इस तरह का दिखेगा, सी
अब यहाँ पे डबल है, यहाँ पे ये देखिए क्या इस तरह का आइकन आ गया, दो साइड में डायरेक्शन एरो आ गया, एरो, और उसमें एक बीच में लंबा वर्टिकल लाइन है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, जितना आपको विड्थ जो कॉलम है उसका विड्थ करना है तो कर दिए। अब इसको कम करना है तो सेम ऐसे किए, और जहां तक एडजस्ट करना है एडजस्ट कर दिए। इसके कॉलम को अगर हमको कॉलम के विड्थ को चेंज करना है, कम करना है तो ऐसे कम कर दिए, बढ़ाना है तो ऐसे बढ़ा दिए। अब इसको हमको कम करना है तो ऐसे करके कम कर दिए, बढ़ाना है तो इसमें सेलेक्ट किया और ऐसे बढ़ गया। सो इन दिस वे वी कैन एडजस्ट द कॉलम विड्थ। अगर रो का विड्थ हमको चेंज, हाइट चेंज करना है, सपोज यहाँ ये जो है आस्था वाले रो का हमको हाइट चेंज करना, तो यहाँ पे गए सी है, आस्था वाले रो का जो लाइन है उसको नीचे वाले को सेलेक्ट किया और ऐसे एडजस्ट कर दिए, बड़ा हो गया। फिर छोटा करना, इसको गए एडजस्ट कर दिए। जिस भी रो का हाइट चेंज करना उस पर गए और ऐसे क्लिक करते गए, ठीक है। बड़ा करना है, बड़ा हो गया, इसको भी बड़ा करना, बड़ा कर दिए। फिर इसको छोटा करना है, इसको सेलेक्ट किए, छोटा हो गया। सो एज पर आवर रिक्वायरमेंट, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे हम लोग ये चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट what changing the width and the height of the row and column, width and height हम लोग उसका चेंज करना चाहते हैं। इफ आई so these are the points related to changing the width and height of the column and row. So modifying the tables topic I have discussed completely. In the next class, in the next video I will upload the contents, I will upload the important content. One of the important content is what? Mail merge. In the next video I will upload mail merge. So that is one of the important topic, very important topic. So that's all for today. Thank you.